خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔ آئیے حضرات، ماشاءاللہ یہ پورا مجمع ہمتن گوش ہو کے سن رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سناٹا کسی بڑے طوفان کی آہٹ ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، آپ کے سکوت پہ لوگ بولتے ہوئے قربان ہو جائیں۔ آئیے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ خطیب مقاصدہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا، جو اس وقت ہمارے لیے خاص طور پہ ایک تبرک کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے علماء کرام، میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سرکار محمد صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ جو بہت دور سے سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، آپ ان کی تقریر سے بہت مستفید ہوں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال علی بن الحسین کان عمنا العباس نافذ البصیرہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کو۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں جشن تاجدار وفا کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ آمادہ ہیں اشعار سننے کے لیے، کیونکہ یہ سلسلہ جشن کا جو ہے یہ اصل نظم کا سلسلہ ہے، نثر کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے ضمن میں ایک مختصر سی خطابت ہے جو میرے نام سے رکھی گئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنی تقریر کا آغاز جو ہے نظم اور نثر کے لغوی معنی سے کروں۔ آپ آئے ہیں نظم سننے کے لیے، دو چیز ہے اردو ادب میں، ایک نظم اور ایک نثر۔ نظم کے لغوی معنی ہے سمیٹنا اور نثر کے لغوی معنی ہے بکھیرنا۔ میں اس کے اوپر دو چار منٹ بول کے پھر اصل تقریر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھا دوں کہ نظم کا سلسلہ ہو یا نثر کا سلسلہ ہو، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ کبھی کبھی نظم کا مقام اونچا ہو جاتا ہے تو کبھی نثر کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اپنی اپنی اہمیت ہے۔ جہاں نظم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں نظم بیان کی جاتی ہے، اور جہاں نثر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں نثر بیان کی جاتی ہے۔ نظم جو ہے، شاعر جو ہے، ایک وسیع مفہوم کو سمیٹ کر دو مصروں میں بیان کر دیتا ہے، اور خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو وہ پھیلا کے ایک گھنٹے دو گھنٹے میں بیان کرتا ہے۔ تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں، نظم ہو یا نثر، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہے سمیٹنا اور نثر کے لغوی معنی ہے بکھیرنا۔ خطیب چھوٹی سی بات کو پھیلا کے گھنٹوں میں بیان کرتا ہے، شاعر بہت بڑے مفہوم کو سمیٹ کر دو مصروں میں کہہ دیتا ہے۔ جس طرح سے ایک غواص سمندروں کی تہوں میں ڈوب کر ایک ہیرا نکالتا ہے، اسی طریقے سے شاعر تصورات کی کائنات میں ڈوب کر ایک شعر کہتا ہے۔ تو عزیزوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نظم ہو یا نثر ہو، یہاں سے میں ربط دے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ائمہ کا نور بھی کبھی منزل نظم میں تھا، کبھی منزل نثر میں تھا۔ یہ نور جب منزل نظم میں سمٹا ہوا تھا تو ایک محمد تھا، جب یہ منزل نثر میں پھیلا تو 12 محمد بنے۔ یہ ائمہ کا نور
بھی کبھی منزل نظم میں تھا، کبھی منزل نثر میں تھا. جب منزل نظم میں سمٹا ہوا تھا تو ایک محمد تھا، منزل نثر میں جب پھیلایا گیا تو 12 محمد بنے. سوال یہ ہے کہ یہ نور کب منزل نظم میں تھا اور کب منزل نثر میں آیا؟ یہ نور کب منزل نظم میں تھا، کب منزل نثر میں آیا؟ عزیزو، یہ نور اس وقت منزل نظم میں تھا جب ابھی زمین کا وجود نہیں تھا، آسمان کی بلندی نہیں تھی، چاند میں روشنی نہیں تھی، سورج میں اجالا نہیں تھا، ستاروں کی انجمنیں نہیں تھی، کہکشاؤں کے جھرمٹ نہیں تھے، غرض کی ابھی سدرۃ المنتہا کا وجود نہیں تھا، عرش و کرسی کا وجود نہیں تھا، بیت المعمور کا وجود نہیں تھا، کوثر کا وجود نہیں تھا، یہاں تک کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا. تو پروردگار عالم نے ایک مرتبہ اپنے نور سے اہل بیت کا نور خلق کیا، ایک عبد بنا، ایک معبود بنا، ایک سجدہ کرنے والا بنا، ایک سجدہ کی عظمتوں پہ نظر کرنے والا بنا. اسی سجدے کی حالت میں جب ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں، لاکھوں برس گزر گئے تو پروردگار عالم کو جب یہ منظور ہوا کہ اس نور کو جس جگہ کے لیے خلق کیا گیا ہے وہاں بھیجا جائے تو اس کے اہتمام میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے عرش کی بلندیوں کو جلوہ گر کیا. اس کے بعد اس نور کو جنت میں رکھا، جنت کی بہاروں میں رکھا، کوثر میں رکھا، کوثر کی موجوں میں رکھا، ملائکہ کے پروں میں رکھا، حوروں کے دامنوں میں رکھا. اس کے بعد اس نور کو اپنے علم کی طہارت میں رکھا. اس کے بعد اس نور کو اپنے قدرت کے جلال میں رکھا. اس کے بعد اس نور کو اپنی مشیت کے حصار میں رکھا. اس کے بعد اس نور کو اپنے حسن کے جمال میں رکھا. اس کے بعد اس نور کو اپنے حسن کے جمال میں رکھا. اس کے بعد اس نور کو نور کے دریاؤں میں غوطہ زن کیا. نور کے دریاؤں میں غوطہ زن کرنے کے بعد یہ نور میکائیل کی جبین میں آیا. میکائیل کی جبین سے یہ جناب آدم کی پیشانی میں آیا. جناب آدم کی پیشانی سے نوح، زکریا، یحییٰ کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے صلب ابراہیم تک پہنچا. صلب ابراہیم سے صلب عبد المطلب، صلب عبداللہ، صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ کے صلب میں پہنچا. اس کے بعد عبداللہ کے صلب سے ایک محمد دنیا میں وجود میں آیا. پھر اس ایک محمد کی بیٹی کے ذریعے سے دنیا میں 12 محمد دنیا میں تشریف لائے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو عزیزو، یہ تو تمہیدی گفتگو تھی. اصل تو جشن جو ہے جشن تاجدار وفا مولا عباس کے سلسلے میں ہے. یہ میں نے شعراء کے لیے تھوڑا سا نظم اور نثر کا سلسلہ اس لیے بیان کیا کہ ان کے لیے تھوڑا ماحول ہو جائے. ابھی ناظم صاحب آپ کے سامنے مولا عباس کے القاب بیان کر رہے تھے. مختلف القاب ہیں. مثال کے طور پر صاحب لوا یعنی علمدار، لشکر کا سردار. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند. باب الحوائج، اور اسی طرح سے دوسرے القاب الفانی، الفادی، بہت سارے القاب ہیں. آج میں چاہ رہا ہوں کہ انہی القاب میں سے ایک دو القاب پہ گفتگو کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو صاحب، میں اس القاب میں سے جو ناظم صاحب نے اشارہ کیا تھا قمر بنی ہاشم، یہاں سے شروع کرتا ہوں. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند. چاند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، جو ہمیشہ نمایاں ہوتا ہے، جو ہمیشہ تابع ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے چاند. جہاں بھی ہو اپنے کو ہائی لائٹ کرتا ہے. چاند وہ ہوتا ہے جہاں بھی وہ اپنے کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اے عزیزو، تو قمر بنی ہاشم کا چاند یعنی جناب عباس بنی ہاشم کا جو قبیلہ ہے اس میں ہائی لائٹ اور نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے قبیلے بنی ہاشم کو سمجھو. یہ قبیلے بنی ہاشم کون سا قبیلہ ہے؟ قبیلہ بنی ہاشم کون سا قبیلہ ہے؟ یہ وہ قبیلہ ہے جس میں عبد المطلب جیسے سید العرب ہیں. اس میں جعفر طیار جیسے، جناب ابو طالب جیسے سید البطحہ ہیں. اس قبیلے میں
मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे सैयदुल अंबिया हैं, इसमें इमाम अली जैसे सैयदुल औलिया हैं, इसमें हसनैन जैसे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, इसमें फातिमा जैसी शहजादी सैयदतुन निसाइल आलमीन है। अरे सब के सब तो सैयद हैं। अब्दुल मुत्तलिब कौन? अरब के सरदार। अबू तालिब कौन? बतहा के सरदार। इमाम अली कौन? औलिया के सरदार। पैगंबर कौन? अंबिया के सरदार। हसनैन कौन? जन्नत के जवानों के सरदार। फातिमा ज़हरा कौन? औरतों की सरदार, दुनिया की औरतों की सरदार। तो जिस कबीले में सब के सब सरदार हो, उस कबीले में अपने को हाईलाइट करना कितना सख्त काम है। बहुत खूब गोशा है। अरे भाई, जिस कबीले में कोई एमए पास हो, जिस कबीले खानदान में कोई एमए पास हो, अगर एमए जो है क्या नाम है, बीए कोई पास हो और एमए करके ना आए तो उसकी कोई हैसियत है? बीए जिस कबीले में सब किए हुए समझाने के लिए, अगर उसमें एमए करके ना आए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जिस कबीले में सब बीए हो, उसमें अगर कोई पीएचडी वाला ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। कहने का मतलब, जिस कबीले में डॉक्टर है, उससे बड़ा डॉक्टर ना बने तो उस डॉक्टर की इतनी अहमियत नहीं होती। जिस कबीले में इंजीनियर है, अगर उससे बड़ा इंजीनियर बन के ना आए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अब्बास ने कितनी मेहनत की होगी और कितनी जहमत की होगी कि बनी हाशिम के कबीले में अब्बास ने मासूम की जबान से कमरे बनी हाशिम का लक़ब हासिल कर लिया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, एक सवाल और बहुत तवज्जो चाहता हूं। चांद जो होता है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेरी बात को बेहतर समझेंगे। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। चांद जो है सूरज से रोशनी हासिल करता है। बहुत तवज्जो चाहता हूं। चांद सूरज से रोशनी हासिल करता है। तो अब्बास बनी हाशिम का चांद है, तो अब्बास का सूरज कौन है? अब्बास का सूरज कौन है? ये चांद जो कबीले बनी हाशिम में चमक रहा है, ये रोशनी कहां से हासिल कर रहा है? ए अजीजों, याद रखना, अहले बैत सूरज है, इमाम अली सूरज है, सैयदुल मुरसलीन सूरज है, हसनैन सूरज है, फातिमा ज़हरा सूरज है। अब्बास इन सूरजों से रोशनी हासिल करता है, उसके बाद कबीले बनी हाशिम में चमकता है। अब मैं बताऊं एक और बात, थोड़ा सा और तवज्जो चाहता हूं अजीजों। इसका मतलब क्या हुआ? चांद जो है वो रोशनी हासिल करता है सूरज से, तो इसका मतलब यह है कि जो खसूसियत सूरज के अंदर है, जो खासियत सूरज के अंदर है, वही रोशनी चांद के अंदर है। तो इसका मतलब यह है कि अब्बास एक ऐसा आईना है कि जिसके अंदर रसूल खुदा की भी सूरत नजर आती है, इमाम अली की भी सूरत नजर आती है, और इमाम हसन इमाम हुसैन का भी इसकी सूरत नजर आती है। ए अजीजों, या लफ्जों को बदल कर ये कह दूं, अब्बास एक ऐसी जात का नाम है कि जिसमें इमाम रसूल खुदा का अखलाक भी नजर आता है, इमाम अली की शुजाअत भी नजर आती है, हसन का हिल्म भी नजर आता है, हुसैन का सब्र भी नजर आता है, फातिमा की इस्मत भी नजर आती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर लफ्जों को बदल के कहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, लफ्जों को बदल कर फिर कहता हूं कि अब्बास सूरज से रोशनी हासिल करता है। सूरज पंजतने पाक है, तो ये सूरज जो है ये कहां से रोशनी हासिल करता है? बहुत तवज्जो चाहता हूं। सूरज की रोशनी कहां से आती है? सूरज कैसे चमकता है? ए अजीजों, याद रखना, अहले बैत अल्लाह की सिफाते हमीदा जो है, उसकी तजल्ली का नाम अहले बैत है। खुदा की सिफाते हमीदा जिसके वजूद से चमकती है दुनिया में, उसे अहले बैत कहते हैं। और अहले बैत की सिफाते हमीदा की तजल्ली गाह जनाब अब्बास है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, ये एक लक़ब जनाब अब्बास का कमरे बनी हाशिम। अब दूसरे लक़ब पे आता हूँ, साहिब लेवा यानी अलमदार। थोड़ा सा मैंने इसमें डीप में जाना था, टाइम बहुत हो जाएगा, कमरे बनी हाशिम में मजलिस तमाम हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 थोड़ा थोड़ा इशारा करके दूसरा लक़ब साहिब लेवा यानी अलमदार यानी लश्कर का सरदार, सरदार लश्कर। अभी आपने सुना नाजिम साहब आपके सामने मौला जनाब अब्बास की शुजाअत के बारे में एक इशारा किया था, तो मैं उसको जरा सा डिटेल और तफसील में आपको बता रहा हूं कि जनाब अब्बास साहिब लेवा हैं, अलमदार, लश्कर के सरदार। अजीजों, आपको पता है कि मासूम का जो लिबास, मासूम का जो असलहा, मासूम की जो अशिया होती है वो गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। मासूम का जो क्या उसको बोलते हैं, उनका जो सामान होता है उसको गैर मासूम जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन तारीख लिखती है कि जब रसूल खुदा का इंतकाल हुआ, यहां से सुनिए, जब रसूल खुदा का इंतकाल हुआ तो उनके चचा अब्बास आए, रसूल खुदा के चचा अब्बास आए और उन्होंने कहा, या अली, रसूल खुदा की तलवार मुझे आप दे दीजिए, रसूल खुदा का अम्मामा आप मुझे दे दीजिए, रसूल खुदा का घोड़ा आप मुझे दे दीजिए, मैं हकदार हूं उसका। बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों, रसूल खुदा की तलवार, अमामा और घोड़ा उनके चचा ने मांगा, इमाम अली ने अमामा उठा के उनके सर पे रखा। बहुत तवज्जो चाहता हूं, मेरी तरफ तवज्जो दे, मेरी तरफ। बहुत बदनज़मी है, बहरहाल इसका ध्यान रखना चाहिए। तो रसूल खुदा के चचा ने कहा, इनसे कहने जरा बैठ जाए। रसूल खुदा का जब इंतकाल हुआ तो उनके चाचा ने कहा, ये हमें दी दीजिए, हम हकदार हैं इसके। ये तो इमाम अली ने रसूल खुदा का अमामा उनके सर पे रखा। इतना वजन उसमें पैदा हो गया कि कहने लगे, अली इसको जल्दी मेरे सर से उतारो, इसकी संगीनी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहां तक आपको ले जाना चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। इमाम अली ने अमामा को उतारा, कहा तलवार मुझको दे दीजिए, मुझे अमामा नहीं चाहिए। तो इमाम अली ने तलवार को जमीन पर रख दिया, कहा कि उठा लीजिए। जब तलवार उठाना चाहा नहीं उठ सकी, कहा अली तलवार में वजन बहुत है, मुझसे नहीं उठती, अब मुझको घोड़ा दे दीजिए रसूल खुदा का। इमाम अली ने कहा बिस्मिल्लाह, आप सवार हो जाइए और चले जाइए। जब घोड़े पे बैठने के लिए नजदीक गए हैं तो अपने पैर से घोड़े ने इस तरह से मारा कि वो दूर जाकर गिरे, बैठने की इजाजत नहीं दी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तारीख लिखती है जंगे सिफीन में इमाम अली ने जनाब अब्बास को, जंगे सिफीन में इमाम अली ने अब्बास को अपना वही अमामा पहनाया, वही तलवार दिया, वही घोड़ा दिया। मैं साबित करना नहीं चाहता कि जनाब अब्बास मासूम थे, नहीं, जनाब अब्बास मासूम नहीं थे, लेकिन कैरेक्टर मासूम जैसा था, अखलाक मासूम जैसा था। अमामा पहनाया, तलवार दी, घोड़े पे बैठे। उसके बाद जो है इस तरीके से अब्बास का चेहरा चमक रहा था। उस वक्त इमाम अली ने कहा कि अब्बास अंता कमरो बनी हाशिम, तुम बनी हाशिम के चांद लग रहे हो। जनाब हनफिया से क्या, ए मोहम्मद हनफिया, अब्बास के चेहरे पे निकाब डाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि नजर लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों की नजर लग जाए। जनाब अब्बास के चेहरे पे निकाब डाला। उसके बाद इमाम अली ने कहा बिस्मिल्लाह। जनाब अब्बास जंगे सिफीन में 15 साल की उम्र, जनाब जंगे सिफीन में घोड़ा दौड़ाते हुए जाते हैं, इस तरीके से दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे जैसे गाजर और मूली को काटा जाता है। दुश्मनों में खलबली मच गई, मैदान छोड़ के भागो, अली मैदान में आ गए हैं।
कि किसी को बुलाया, इधर आओ, बात क्या है, क्यों सब भाग रहे हैं? उसने कहा अली मैदान में लड़ रहे हैं इसीलिए सब भाग रहे हैं, तुम भी भागो, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुआविया ने कहा यह मुमकिन नहीं है, यह हो नहीं सकता, अली मैदान में आ जाएं। क्यों? इसलिए कि हम में और अली में यह मुआहिदा हुआ है कि ए अली, जंगे सिफीन में न आप आएंगे न मैं आऊंगा। अली कभी अपने मुआहिदा को नहीं तोड़ सकते, उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। ए अजीजों, तो उससे पूछा, उसने कहा कि नहीं अली लड़ रहे। कहा तुमने पहचाना कैसे? कहा अली चेहरे पे निकाब डालकर मैदान में आए हैं। तो कहा पहचाना कैसे? तो कह रहा है कि घोड़ा दौड़ाने का अंदाज अली की तरह है, तलवार चलाने का अंदाज अली की तरह, घोड़ा दौड़ाने का अंदाज अली की तरह है, तलवार चलाने का अंदाज अली की तरह है, हमला करने का तरीका अली की तरह है, और दुश्मनों पे वार करने का तरीका अली की तरह है। अली पहले क्या करते थे? जनाब अब्बास के बारे में लिखते हैं, ये अब्बास की जंग में पता चला कि जब दुश्मन सामने आता था तो अब्बास के एक हाथ में नेजा होता था, एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में, पहले ये नेजे से घोड़े के पांव में चुभोते थे, फिर उसके बाद दुश्मन को चुभोते थे, उसके बाद नेजे को फिजा में उछालते थे। फिजा में जब तक नेजा ऊपर की बुलंदियों से नीचे नहीं आता था, इसी के दरमियान अब्बास की तलवार चलती थी, दुश्मन दो टुकड़ों में तब्दील होकर जमीन पर गिर जाता था। दुश्मन दो जुमलों में दो टुकड़ों में तब्दील होकर जमीन पर गिर जाता था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किरताज भाई का एक जुमला सुना था मैंने दूर से कि कभी अपने से भी आप लोग सलवात पढ़ लिया करें। तो अजीजान मोहतरम, कहने का मतलब यह है कि उसके बाद जब दुश्मन भाग रहा था मैदान से और कहा कि अली मैदान में आ गए हैं, और मुआविया को जब पता चला तो वो जब पूछा उससे तो उसने कहा जंग करने का तरीका अली की तरह है, तलवार चलाने का तरीका अली की तरह है, हमला करने का अंदाज अली की तरह है। तो उसी दरमियान में इमाम अली एक दूसरे घोड़े पे बैठकर दौड़ते हुए जंगे सिफीन में आए और कहने लगे, जनाब अब्बास के चेहरे से निकाब हटा के मुआविया की तरफ मुखातब होके कहा, ए मुआविया देख ले, ये मैं नहीं लड़ रहा था, मेरा 15 साल का बेटा अब्बास लड़ रहा था। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो अजीजों, कमरे बनी हाशिम आपने सुन लिया और साहिब लेवा यानी अलमदार आपने सुन लिया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मेन जो आपको मैंने जहमत दी है अजीजों, इसी लकब के लिए जहमत दी है। ये लकब आपने नहीं सुना, मैं आपको बता रहा हूं। हर जुमेरात को जियारत वारिसा में जब आप पढ़ते हैं जनाब अब्बास की जियारत, तो क्या कहते हैं? उसमें क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व रसूलिह। यानी जनाब अब्बास का एक लक़ब अब्दे सालेह है। बहुत तवज्जो चाहता हूं, इसीलिए जहमत दिया है। अब्दे सालेह है। अब्दे सालेह का मतलब क्या है? अजीज, अफसोस की बात यह है कि लोगों ने जनाब अब्बास को एक जंगजू साबित किया है, एक बहादुर, सिर्फ जो है शुजाअत और बहादुरी में महदूद कर दिया है। अब्बास एक खाली एक जंगजू इंसान का नाम नहीं है, एक बहादुर और सावंत का नाम नहीं है। बहादुरी के साथ साथ अब्बास एक अब्दे सालेह भी है। अब्दे सालेह का मतलब क्या होता है? अब्दे सालेह का मतलब यानी सालेह गुलाम, अब्द यानी गुलाम। गुलाम किसको कहते हैं? उस वक्त अरब में गुलाम जो है खरीदा और बेचा जाता था। जैसे सामान इंसान बेचता था, वैसे तो जब आप कोई सामान खरीदे तो आप उसके मालिक हो जाते हैं, फिर उसको आप जैसे चाहें यूज करें, इस्तेमाल करें। इसी तरह पहले जमाने में गुलाम को खरीदा बेचा जाता था, यानी जो मालिक होता था उससे जो काम चाहे वो कराए, वो उसका मालिक है, इसको गुलाम कहा जाता था उस जमाने में। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। तो अजीजों, इससे बताना क्या चाह रहा हूँ? इससे बताना ये चाह रहा हूँ कि गुलाम की जो अपनी मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं करता, वो अपने आका की मर्जी के मुताबिक
काम करता है, अब्द सालेह अपनी आका के मर्जी के मुताबिक, अब्द जो है अपनी आका के मर्जी के मुताबिक काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, उलमा कहते हैं कि अब्द सालेह का आका कौन होता है? अल्लाह। और आम गुलामों का आका एक इंसान होता है। तो जो अब्द सालेह होता है वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई एक कदम, एक हरकत नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर वो देखेगा अपनी आंख से तो उस जगह देखेगा जहां अल्लाह की मर्जी है। उसका हाथ उठेगा तो उस जगह उठेगा जहां पे अल्लाह की मर्जी है। उसका कदम चल कर जाएगा तो उस जगह जाएगा जहां पे अल्लाह की मर्जी है। यहां तक उलमा कहते हैं कि वो सोचता भी है तो अल्लाह की मर्जी जिस चीज में शामिल है उसके बारे में सोचता है। क्या मैं कह रहा हूं अजीजों? अब्द सालेह उसको कहते हैं जो अपनी आंख पे कंट्रोल रखता हो, अपने कान पे कंट्रोल रखता हो, वो सुने जिसमें अल्लाह की मर्जी है, अपने हाथ पे कंट्रोल रखता हो, अपने पूरे वजूद पे कंट्रोल रखता हो, उसको अब्द सालेह कहते हैं। यहां से अगर समझ में नहीं आता कि अब्द सालेह का मतलब क्या है तो मैं आपको बताऊं। आप मेराज सुनते रहते हैं ना, पैगंबर की मेराज। मेराज किसकी हुई है? पैगंबर की हुई है। मोहम्मद की मेराज हुई है। मेराज किसकी हुई है? कुरान कह रहा है मेराज पैगंबर की नहीं थी, मेराज मोहम्मद की नहीं थी, मेराज एक अब्द की थी, एक अब्द सालेह की थी। सुबहानल्लाजी असरा बे अब्दिही, सुबहानल्लाजी असरा बे अब्दिही। पाक व पाकीज़ा वो जात है जो अपने अब्द को ले गई मेराज पे सैर कराने के लिए। मोहम्मद को नहीं ले गई। क्यों अब्द इस्तेमाल किया? अजीजों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा और शोरा के दरमियान बात कर रहा हूं। अबूदियत जो है वो नबूवत से अफजल है, अबूदियत मोहम्मद से अफजल है। क्यों? इसलिए कि जो अबूदियत की आखिरी मंजिल पे होता है मोहम्मद और नबी और इमाम वही बन सकता है। जो अबूदियत की आखिरी मंजिल पे ना हो वो ना नबी बन सकता है ना इमाम बन सकता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब मेराज पे परवरदिगार आलम ने कहा मोहम्मद से कि ए मोहम्मद बेमा मुशर्रफ का, मैं तुमको किस तरीके से तुम्हारा इस्तकबाल करूं, मैं किस तरीके से तुम्हारा वेलकम कहूं, किस तरीके से तुम्हारी पजीराई करूं। तो उस वक्त पैगंबर ने क्या जवाब दिया था? ए परवरदिगार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बस तू मुझे अपने अब्द सालेह और हकीकी बंदों में शामिल कर ले, मैं तेरा हकीकी बंदा हो जाऊं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों, एक और बात कह के आपकी ज़हमत तमाम करूं। अब्द सालेह की कीमत क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अगर एक अब्द सालेह को बार बार मैं कह रहा हूं, लोग बहुत बात कर रहे हैं, बेनज़मी बहुत ज्यादा है प्रोग्राम में, जो एहतराम के खिलाफ है, रिस्पेक्ट नहीं है। यानी बेनज़मी का मतलब रिस्पेक्ट नहीं है प्रोग्राम की। इसलिए मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं, प्लीज रिस्पेक्ट करें। ये प्रोग्राम जश्न ताजदार वफा मौला अब्बास के नाम हो रहा है, लिहाजा बातें कम करें और जिसके लिए आप आए हैं यहाँ शिरकत करने के लिए, आप उस पर आप जो है तवज्जो दें। अजीजों, किसी को अगर खराब लगे तो माफ कीजिएगा। यहाँ आने का मकसद है ना, आने का मकसद क्या है? आप क्यों यहाँ आए हैं? क्योंकि आपके दिल में मोहब्बत है। किसकी मोहब्बत है? मौला अब्बास की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना होती तो आप आते यहाँ? नहीं आते ना। तो मोहब्बत का मतलब क्या होता है? मोहब्बत सच्ची भी होती है, झूठी भी होती है। माफ कीजिएगा, मोहब्बत सच्ची भी होती है, झूठी भी होती है। इसीलिए कुरान में परवरदिगार आलम ने क्या कहा? परवरदिगार आलम ने कुरान में कहा कि ये पैगंबर आप इन लोगों से कह दीजिए कि अगर इनके दिल में मेरी सच्ची मोहब्बत है तो मेरा इत्तिबा करें, मेरी पैरवी करें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। तो ए अजीजों, मोहब्बत का एक असर होता है, ये अगर असर ना हो तो मोहब्बत झूठी है। मैं आपको समझाऊं, मोहब्बत जिस तरह चांद में अगर रोशनी, चांद अगर निकला है तो रोशनी होगी, सूरज अगर चमक रहा है तो उजाला होगा, दिन होगा, आग अगर जल रही है तो हरारत होगी,
रही है तो बरूदत होगी। यह मुमकिन नहीं है कि चांद रोशन हो और उजाला न हो, सूरज निकला हो और दिन न हो, आग जल रही हो, हरारत न हो, बर्फ पिघल रहा हो और बरूदत न हो। यह मुमकिन नहीं है। अगर जो है चांद होगा तो रोशनी होगी, सूरज निकलेगा तो दिन होगा, आग जलेगी तो हरारत होगी, बर्फ पिघलेगा तो बरूदत होगी। इसी तरह अगर किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत है तो उसका असर दिखा के रहेगी। और जिस तरह सूरज की रोशनी को सूरज से अलग नहीं किया जा सकता, चांद की रोशनी को चांद से अलग नहीं किया जा सकता, आग से हरारत को जुदा नहीं किया जा सकता, बर्फ से बरूदत को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से अगर किसी के दिल में किसी की मोहब्बत है तो उसके असर को जुदा नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई सुपर पावर ताकत मिलके मोहब्बत के असर को अलग नहीं कर सकती। इसीलिए मोहब्बत जहां भी रही अपना असर दिखा के रही, चाहे घर में रही हो, चाहे घर के बाहर रही हो, चाहे मिस्र के बाजार में रही हो, चाहे मीसा में तम्मार की सूरत में दार पे रही हो। ये मोहब्बत जब जो है इंसान के दिल में जब किसी की मोहब्बत आ जाती है तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसको रोक नहीं सकती। यही वजह थी कि जब हुसैन की मोहब्बत हुर के दिल में आई और करवटें बदलना शुरू की तो यजीद जिसके हुकूमत पूरे अरब में थी, पूरी हुकूमत मिलके हुर के कदम को ना पकड़ सकी। तो अजीजों, बात कहां से कहां चली गई। मैं अब्दे साले की बात कर रहा था। एक अब्दे साले को, अब्बास का एक लक़ब अब्दे साले है, एक अब्दे साले को अगर बाजार में बेचा जाए तो कितने का बिकेगा? कोई कीमत बता सकता है अब्दे साले की? बहुत खास तौर से मेरे जवान, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, इसीलिए मैंने जहमत दी है। कीमत कितनी है एक अब्दे साले की बाजार में? क्या दुनिया के जितने यूरो और डॉलर हैं अगर उसको दे दिया जाए तो उसकी कीमत बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या जमीन के अंदर जितने खजाने हैं उसकी कीमत बन सकती है? नहीं बन सकती। आसमान की बुलंदी कीमत बन सकती है अब्दे साले की? नहीं बन सकती। दरिया के खजाने खरीद सकते हैं अब्दे साले को? नहीं खरीद सकते। चांद की रोशनी खरीद सकती है अब्दे साले को? नहीं खरीद सकते। सूरज की रोशनी खरीद सकते नहीं। तो फिर कीमत क्या है एक अब्दे साले की? ए अजीजों, याद रखना, इसकी कीमत आज आपको बता रहा हूं। इमाम अली ने इसकी कीमत हमको बताई। अब्दे साले की कीमत ये है, इमाम अली कहते हैं कि खबरदार, तुम कभी भी अपने को जन्नत के सिवा किसी दूसरे से सौदा ना, किसी दूसरी चीज के जरिए सौदा ना करना। तुम्हारी सबसे कम कीमत जन्नत है। तुम्हारी सबसे कम कीमत जन्नत है। ये अजीजों, सबसे कम कीमत, इसका मतलब यह है कि जन्नत से भी बढ़ के कोई चीज है जो इंसान की कीमत बन सकती है। तो ये अजीजों, मैंने अली से पूछा, मौला ये तो आपने कम से कम कीमत बताई, ज्यादा से ज्यादा कीमत भी बता दीजिए। कहते हैं आओ शबे हिजरत, मैं तुमको बताता हूं ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत है। आओ शबे हिजरत, मैं तुमको कीमत बताता हूं। अजीजों, शबे हिजरत इमाम अली सो रहे थे, जिब्रील आसमान से आए। मौला कहते हैं कि या अली, आपका ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद आया और अल्लाह आपके नफ्स को खरीदना चाह रहा है। क्या आप बेचेंगे? क्या आप बेचेंगे? इमाम अली ने कहा बेचूंगा। कीमत क्या होगी? अजीजों, ज्यादा से ज्यादा कीमत बता के आपकी ज़हमत तमाम, अपनी कीमत समझ लीजिए कितनी है। ज्यादा से ज्यादा कीमत तो बेचे। हाँ, कीमत क्या होगी? तो कहा, जिब्रील ने कहा या अली, जमीन के जितने खजाने हैं आपको दे दिया जाए। इमाम अली ने कहा जब मैं खाना खा के अपना हाथ धोता हूं तो मेरे धोवन जो है हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। तो कहा अली, तब आप जो है पूरी कायनात की जमीन ले लीजिए, तुराब। कहते हैं मैं पहले से अबू तुराब हूं, जमीन लेके क्या करूंगा? कहा अली, तब एक काम कीजिए, आसमान की बुलंदी ले लीजिए। तो कहा कि मैं शबे मेराज इतनी बुलंदियों पे था कि जहां सैयदुल मलाइका जिब्रील भी अपना कदम नहीं रख सकता था। तो कहा अली, तो चांद ले लीजिए। कहा चांद लेके क्या करूंगा? मैं तो उसको 2 टुकड़ों में तब्दील कर देता हूं।
تو کہا تب سورج لے لیجئے. کہا سورج لے کے کیا کروں گا, اس کو میں اپنے انگلی کے اشاروں سے پلٹا دیتا ہوں. اے عزیزو, ایک مرتبہ پھر جو ہے جبریل نے کہا اے علی تب ایسا کرے کہ ستاروں کی انجمنیں لے لیجئے. کہا ستارہ لے کے کیا کروں گا, ارے اس کو تو جب چاہتا ہوں اپنی چوکھٹ پہ بلا لیتا ہوں. اے عزیزو, اس کے بعد کہا جبریل نے کہا علی تو آپ کوثر لے لیجئے. کہا کوثر لے کے کیا کروں گا, میں تو پہلے سے ساقی کوثر ہوں. تو کہا اے علی تب جنت لے لیجئے. کہتے جنت لے کے کیا کروں گا, میرے بیٹے تو پہلے سے جنت کے سردار ہیں. اے عزیزو, جبریل نے کہا اے علی تب آپ ہی بتائیے آپ کی قیمت کیا ہے, آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے. عزیزو یاد رکھیے یہی گفٹ ہے, یہی تحفہ ہے, یہی ہدیہ ہے, آنے کا یہی ہے. علی نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی تھوڑی سی مرضی دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی تھوڑی سی مرضی مجھے دے دے یہی میری قیمت ہے. مطلب یہ ہوا جنت سے بڑی چیز اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے امام علی نے کہا مجھ کو جنت میں بیٹھنے سے بہتر مسجد میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں. پوچھا گیا یا علی جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو امام علی نے جواب دیا کہ جب میں جنت میں بیٹھتا ہوں تو میرے نفس کی مرضی شامل ہوتی ہے, جب مسجد میں بیٹھتا ہوں تو اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. یہ ہے عبد صالح کا مطلب. تو عباس کون ہے؟ عباس عبد صالح کا نام ہے. صرف عبد صالح نہیں, بعد میں جملہ ہے زیارت کا المطیع للہ ولرسولہ, کہ ایسا عبد صالح کہ جو اللہ کا بھی مطیع اور فرما بردار ہے اور رسول کا بھی مطیع اور فرما بردار ہے. اے عزیزو, ہم محبت لے کے آئے ہیں یہاں, مولا عباس کی محبت لے کے آئے ہیں. اور مولا عباس ایک جنگجو صرف نہیں ہے, ایک بہادر نہیں ہے, ایک ساونت نہیں ہے, عبد صالح ہے. تو محب کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ عبد صالح کے جشن میں آئے ہیں تو عبد صالح بنے. عبد صالح کیسے بنا جائے گا یہ بات کر کے آپ کی زحمت تمام. عبد صالح کیسے بنیں گے اس کی بڑی تفصیل ہے, لیکن یہاں مجمع ماشاءاللہ سے مختلف قوم کا مجمع ہے تو میں دوسرے طریقے سے عبد صالح بننے کا طریقہ سمجھاتا ہوں. یہ جو بیماری ہے کورونا وائرس کووڈ-19, کتنے لوگ مر گئے نا, عبد صالح کو سمجھا رہا ہوں. یاد رکھیے عبد صالح, کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس, اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, ماسک ہے, ڈسٹینسنگ ہے, اس کے بعد جو ہے کیا سینیٹائزر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں نا. کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ بیماری آپ کو لگ گئی تو آپ کا جسم بیمار ہو جائے گا, شریر بیمار ہو جائے گا, اور جب بیمار ہو جائے گا اور زیادہ ہو گیا تو کمزور ہوگا. جب کمزور ہو جائے گا تو پھر جسم کی جو حیات ہے وہ ختم ہو جائے گی. نذیر بھائی توجہ دیجیے گا. تو جسم کمزور ہو جائے گا, آدمی دنیا سے گزر جائے گا. اے عزیزو, مرزا غالب کیا کہتے ہیں کہ قدر صحت مریض سے پوچھو, تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے. لیکن اے عزیزو, میں اس سے بڑھ کے آگے کرتا ہوں, اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں جو مولا کائنات نے کیا. مرزا غالب صرف ہماری جسم اور باڈی تک محدود رہ گئے. امام علی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو دنیا میں ہے وہ عافیت اور تندرستی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس سے بھی بہتر ایک چیز ہے جو صحت قلب اور صحت روح ہے. جو صحت روح ہے, صحت قلب ہے, یعنی مطلب کیا ہوا, صحت قلب اور صحت روح کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑی چیز دنیا میں تندرستی ہے اور صحت ہے, اور صحت اور تندرستی سے بڑھ کے ایک اور چیز ہے جس کا نام روح ہے اور قلب ہے. امام علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے تم کورونا وائرس سے اپنے جسم کو بچاتے ہو, اسی طریقے سے جو روح کی بیماریاں ہیں اس سے جو تم اپنے کو بچاؤ گے تو عبد صالح بن جاؤ گے. جب عبد صالح بن جاؤ گے تو تمہاری قیمت کم سے کم جنت ہوگی, اس سے کم نہیں ہوگی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر.
अफसोस की बात यह है कि जो आज के हमारे जवान हैं, कोई अपने को शराब खानों में बेच देता है, कोई अपने को तवाइफ खानों में बेच देता है, कोई अपने को ख्वाहिशात नफ्स के हाथ बेच देता है, कोई अपने को शैतान के हाथ बेच देता है, और कुछ इतने बदनसीब हैं जो अपने को मुफ्त में ही बेच देते हैं। एक बार जो है मामून रशीद का ज़माना था, बहलोल दाना वहाँ पे थे, वो नहा के निकला तौलिया बांध के हम्माम से, लुंगी पहन के, तो कहने लगा बहलोल दाना मैं कैसा लग रहा हूँ? तो कहा कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। कहा कि मैं मुझे बेचा जाए तो मैं कितने का बिकूंगा, मेरी कीमत कितनी है? तो बहलोल दाना ने कहा 5 दिरहम। 5 दिरहम। कहा कैसी बात कर रहे हो, 5 दिरहम? कहा कि हाँ। कहा क्यों? कहा इसलिए। इतना कम? कहा हाँ इसलिए कि तुम लुंगी पहने हो इसलिए 5 दिरहम। वो लुंगी की कीमत 5 दिरहम है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अजीजों, इससे ज़्यादा आपका वक्त लेना मुनासिब नहीं है, बस मैं अपनी तकरीर को यहाँ पर इख्तिताम पजीर करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारी इस कलील इबादतों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।